Hello friends and all the students, welcome to this YouTube channel Chemistry with Kapil Kumar. Today I will start the first chapter of 11th class, the basic concepts of chemistry. There are total 26 major topics in this chapter, but today we will discuss about only first three major topics. The first is introduction of chemistry, second is contribution of the Indian scientist in chemistry, and the third is importance of chemistry. Let me start the first topic, introduction of chemistry. Before we know about the chemistry, at first we should know about science. What is science and where did it come from? In my sight, science can be defined as a human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature. हमारे आसपास की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको समझने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी नॉलेज ह्यूमन ने अपने एफर्ट के द्वारा एक्वायर किया और उसको सिस्टमाइज किया, उसको क्रमबद्ध किया, व्यवस्थित किया, उसी नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस, विज्ञान. फॉर आवर कन्वीनियंस we divide the science into various parts like chemistry, physics, biology, mathematics, geology, and so on. Every part further divided into many subparts. For example, there are many branches of chemistry like organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, photochemistry, stereochemistry, and so on. Similarly, physics and biology can also be divided into many subparts. Chemistry is the study of composition, structure, properties, transformations and uses of matter. Matter यानी पदार्थ, है ना. Matter is an entity which have mass and volume. हर वह चीज़ जिसका मास होता है और वॉल्यूम होता है. मास यानी द्रव्यमान, उसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्य हो, है ना, और उसका वॉल्यूम हो, कुछ न कुछ वो जगह घेरता हो, तो उसे हम कहते हैं मैटर. तो किसी भी मैटर की कंपोजिशन, व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन इज दैट कि किन पार्टिकल्स से, स्मॉल पार्टिकल्स जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इनसे मिलकर के मैटर बना है. किन से बना है? एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, आयंस से बना है. तो कंपोजिशन का मतलब होता है वो मैटर किससे बना है ना. अगर एलिमेंट से बना है तो कौन से एलिमेंट से बना है. तो कंपोजिशन इज दैट द स्मॉल पार्टिकल्स बाय विच द मटेरियल इज मेड. नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिन स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के वो बना है, वो स्मॉल पार्टिकल्स आपस में किस तरह से जुड़े हैं, किस तरह से अटैच्ड है. दे आर अटैच्ड इन विच मैनर, जिस भी तरीके से वो आपस में जुड़े हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर की जानकारी लेना. तीसरा है प्रॉपर्टीज़. देर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज़ कैन बी known by us. For example, melting point, boiling point, conductivity, refractive index, color. There are so many. Viscosity, है ना, surface tension. So many properties of any matter that we can know about variety of experiments. तो variety of experiments से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो प्रॉपर्टीज़ की जानकारी लेना. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कोई मैटर है उसको दूसरे मैटर में बदलना, कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन करके, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. एंड यूजेस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी नया इन्वेंशन, नया कंपाउंड या कोई नया मैटर जब हम बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे यूज़ में कितना आ रहा है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल है या नहीं. तो केमिस्ट्री का मतलब है कि किसी मैटर की स्टडी करना, किस बारे में,
उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और वो क्या यूज़ में आ सकता है। यही है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। It is also called the science of atoms and molecules because every matter is made up of small particles, microparticles like atoms, molecules, and ions. Therefore, we can say the chemistry as the science of atoms and molecules. It is the smallest definition of chemistry. Now, although the above two definitions are acceptable, but they don't explain why the study of chemistry is necessary for us. दोनों डेफिनेशंस जो हमने ऊपर पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये डेफिनेशंस हमको ये नहीं बताती कि केमिस्ट्री पढ़ना आपके लाइफ में ज़रूरी क्यों है, आप क्यों पढ़े केमिस्ट्री। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपको एवरीडे लाइफ में आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री कितनी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। 2 या 3 एग्जांपल आप हम शुरू में देखेंगे, बाद में तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन 2 से 3 एग्जांपल ऐसी चीज़ जो आपकी बुक में भी नहीं है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट व्हेन वी रीड अ बुक आवर आईज यूज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रेटिनल। द फुल नेम ऑफ दिस रेटिनल इज 11-cis retinal. This retinal convert visible light into nerve impulse so that we can see. The structure of retinal is as follows. आपको रेटिनल का स्ट्रक्चर दिया है। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, आपको स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना है, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि हमारी आँख में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रेटिनल रहता है जो विजिबल लाइट को नर्व इम्पल्स में चेंज करके हमारे माइंड को, मस्तिष्क को जानकारी देता है, और उस जानकारी के कारण हम देख पाते हैं। और ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए हम जैसे आँख खोलते जो हमको दिखता है वो हम पहचान सकते हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे आइज़ के अंदर एक केमिकल कंपाउंड है जिसके कारण हम देख पाते हैं। द सेकेंड एग्जांपल इज दैट when we picked up the book our muscles are providing necessary energy to us by reacting on sugar. जब हम किसी बुक को उठाते हैं, when we picked up the book our muscles, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो शुगर के ऊपर रिएक्ट करके हमको नेसेसरी एनर्जी जो हमको उसको उठाने के लिए चाहिए वो देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुगर के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है और उससे एनर्जी क्रिएट हो रही है। द थर्ड एग्जाम्पल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट द वैकेंट स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ अवर ब्रेन, है ना। व्हेन वी अंडरस्टैंड समथिंग, जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में कैसे आता है कि हमारे ब्रेन सेल्स के बीच में कुछ वैकेंसीज है, रिक्त स्थान है ना। वो कनेक्ट हो जाती है किसके द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर एमीन जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है सेरोटोनिन, जिसकी स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सो दैट द नर्व इम्पल्स कैन पास थ्रू अवर ब्रेन एंड वी कैन डू ऑल दिस इजीली विदाउट एनी कंसिडरेशन। बिना किसी बोध के हम आसानी से किसी चीज़ को समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि हमारी ब्रेन के बीच का जो गैप है वो कनेक्ट हो जाता है किसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर एमीन की वजह से। तो इन्फॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाती है और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है ना। या हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको समझने की क्षमता हमारी इस न्यूरोट्रांसमीटर एमीन जिसका नाम है सेरोटोनिन द्वारा विकसित होती है, डेवलप होती है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेरोटोनिन। देखिए आप स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही कहा आपको सेरोटोनिन की स्ट्रक्चर को लर्न नहीं करना है, केवल देखना है कि ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। नाउ केमिस्ट्री बिगेन एज अ रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ। केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई वो लाइफ को समझने के तौर पर हुई ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और केमिस्ट्री हैज़ ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ थ्रू न्यू मॉलिक्यूल्स। The invention of these new molecules introduces us to new substances such as plastic, colors, perfumes, new drugs and so on. केमिस्ट्री के द्वारा मनुष्य ने
अपने जीवन को जानने का प्रयास किया, और ये जो उसने अपनी एफर्ट लगाई वो नए नए मॉलिक्यूल्स की खोज करके लगाई। नए मॉलिक्यूल्स की खोज से नए पदार्थ बने, न्यू मटेरियल्स का निर्माण हुआ। ये मटेरियल्स आप जानते हो आपकी एवरीडे लाइफ में कितने यूज़फुल हैं। प्लास्टिक्स हैं, कलर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, न्यू ड्रग्स, नई नई दवाइयाँ हैं, है ना, पॉलीमर्स हैं नए नए, है ना, फाइबर्स हैं, ये सारे, एंड सो मोर। आज की तारीख में लगभग 4 केमिकल्स रोज़ इन्वेंट किए जा रहे हैं, और टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं वो करोड़ों में है। 1 करोड़ के ऊपर, लगभग 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो आप इसका एक्सटेंट समझ सकते हैं कि किस लेवल तक केमिस्ट्री का दायरा पहुंच चुका है। पल थिंग Some people think that all these new chemicals are unnatural and harmful, but for a chemist this is meaningless. बहुत से लोग सोचते हैं कि जितने भी न्यू केमिकल्स बन रहे हैं वो हैज़ार्डस है हमारे शरीर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जितने भी न्यू मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं वो नेचुरली, नेचर से हमको जो मिला है, बनाए तो उसी से जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें ग्रीन केमिस्ट्री और आ गई। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट जब बनता है, नया मॉलिक्यूल्स बनता है या न्यू मटेरियल जब बनाया जा रहा है लैब के अंदर, तो ये देखा जाता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज़फुल देन उस पर विचार नहीं किया जाता, उस मटेरियल को, न्यू सब्सटेंस को बनाने पर विचार नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है किसी केमिस्ट के लिए। नए मॉलिक्यूल्स को हम क्यों बनाएं, भाई ये नेचर के लिए हानिकारक होगा, ये कोई केमिस्ट नहीं सोचता। वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं अपने रहने के लिए, पक्षी घोंसला बनाते हैं, और मानव मकान बनाता है। तो इसमें कोई भी अननेचुरल कैसे हो सकता है? मनुष्य की सुविधा के हिसाब से वो अपना रहने का हाउस बना रहा है, होम का निर्माण कर रहा है। और पक्षी है, बर्ड्स हैं, उनको उनका माइंड सेट बिल्कुल फिक्स हो चुका है, वो उससे आगे सोच नहीं सकते, इसलिए वो बरसों से, हज़ारों सालों से वो नेस्ट ही बना रहे। तो इसमें कोई भी अननेचुरल नहीं है। तो द डिस्कवरी ऑफ टोटली न्यू कंपाउंड्स केमिस्ट के लिए ये बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस होता है। कमिंग ऑन, second topic, contribution of Indian scientists in chemistry. From ancient time there are so many scientists who gave their lot of contribution to chemistry. Some of them as follows. यहाँ पर मैं, वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में अपना योगदान दिया है, लेकिन हम मुख्य रूप से मोटे तौर पर हम ये टॉपिक इसलिए जोड़ा ताकि बच्चों को ये नॉलेज हो कि हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर भी साइंटिस्ट हुए। हालांकि वो महर्षि के रूप में हुए, ऋषि के रूप में हुए, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर एवरी सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम यहाँ पर चूँकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम केमिस्ट्री के जितने भी साइंटिस्ट हमारे फेमस हैं उनके बारे में मोटे मोटे रूप में, ऊपरी तौर पर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और मुख्य बिंदु हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, एक बुक जो है 1901 में लिखी प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को फादर ऑफ केमिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में रसायन का पिता, है ना। दूसरी बात है परमाणुता का सिद्धांत। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी दिया था डाल्टन ने, लेकिन डाल्टन से भी पहले एक इंडियन महर्षि ने दिया था, उनका नाम था महर्षि कर्णाद। ठीक है। नेक्स्ट चरक संहिता, जो आपने सुना भी होगा, भारत में एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं चरक, और उन चरक ने एक अजीब सा सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था उधार लेकर घी पियो। उधार लेकर घी पियो मतलब, इसका मतलब ये है जीवन एक बार मिला है और इसको जैसे जीना चाहो इसको जी लो, है ना। तो अलग अलग महर्षि हुए, किसी ने अलग अलग महर्षि ने अलग अलग अपने प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए।
तो चरक संहिता ने जो महर्षि चरक ने लिखी है, और इसके अंदर मेडिसिनल साइंस का पूरा ब्यौरा दिया गया है। मेडिसिनल साइंस मतलब फार्मेकोलॉजी, जितनी भी हमारी मेडिसिन्स हैं, जैसे सर दुखने पर, पेट में दर्द होने पर, है ना, जितनी भी मेडिसिन, सर्दी जुकाम होने पर, या कोई ऐसी हमको डिजीज़ हो गई है, तो विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, उसका पूरा ब्यौरा चरक संहिता में दिया गया है ना। इट इज़ रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजी और मेडिसिन साइंस, मेडिसिनल साइंस। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता इज रिलेटेड टू सर्जरी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सर्जरी का सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ वो इंडिया में हुआ है ना, और इसको किसने लिखा? आचार्य सुश्रुत ने लिखा। अदर एंशिएंट केमिस्ट कौन कौन से हैं जिनका नाम केवल नाम दे रखा है, इनकी खोज के बारे में और जानना पड़ेगा। नागार्जुन, वाघभट्ट। नागार्जुन ने तो ये मेटोलॉजी के ऊपर किया। वाघभट्ट आयुर्वेद, आज हम जो भी आयुर्वेद देखते हैं बाबा रामदेव से रिलेटेड या राजीव दीक्षित वगैरह, राजीव दीक्षित के मुंह से आपने वाघभट्ट का नाम सुना होगा। इन्होंने हमको आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे सिद्धांत दिए, हमको कैसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किन दो मतलब खाने की सामग्री को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमको सुबह क्या खाना चाहिए, दिन को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से हमको प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो ये वाघभट्ट ने बताया। इसी प्रकार से गोविंदाचार्य, यशोधर, रामचंद्र और सोमदेव भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना केमिस्ट्री में भरपूर योगदान दिया और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। नाउ वी स्टार्ट द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ नोन एज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ही आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में या हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड्स कैन बी ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। वैसे तो केमिस्ट्री की महिमा जितनी गाई जाए, सुबह से शाम हो जाएगी, हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप में जो हम बच्चों को समझाने के लिए वेरियस फील्ड्स हम जो बताएंगे, है ना। मेजरली यहाँ पर टोटल 9 फील्ड्स हैं। हम एक एक करके सभी फील्ड्स के अंदर देखेंगे कि एक आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी केमिस्ट्री हमारे यहाँ पर क्या यूज़ में फ़िलहाल आ रही है, जिससे हम अपना फील्ड भी तय कर सकें। देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ कर के किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आपको एक जानकारी मिल सकती है इसके द्वारा। तो सबसे पहला फील्ड है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि। तो खेती में केमिस्ट्री का यूज़ क्या है भाई? इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ग्रीन मैन्योर की जगह पर यानी देशी खाद की जगह पर रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होती है, एक्सपेक्ट बिल्कुल जितना चाहिए उस रेशियो में होती है, जिससे कि हमारी जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ती है। तेज़ी से बढ़ती है तो फसल अधिक होती है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो किसानों को, फार्मर्स को फ़ायदा होता है ना। हालांकि इनका अधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हैज़ार्डस है, हानिकारक है, ख़तरनाक है ना। लेकिन फिर भी इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, अगर इसे उचित अनुपात में मतलब बिल्कुल कम मात्रा में यूज़ किया जाए, उचित मात्रा में यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। लेकिन आजकल के जो फार्मर्स हैं वो बिना ये सोचे समझे कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा, केवल पैदावार बढ़ाने के लिए और अधिक पैसे कमाने के लिए, धन अधिक कमाने के लिए लालच में केमिकल फर्टिलाइज़र का बेतहाशा बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ धीरे धीरे हो रही है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। इसमें केमिस्ट्री का कोई दोष नहीं है। दोष हमारी किसका है? नैतिकता का है। हमारी मोरल वैल्यूज़ कम हो गई हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाले को क्या नुकसान करेगा, इसीलिए। बाकी केमिस्ट्री कोई जीवित विषय तो है नहीं, हमारे हाथ में हम उसका यूज़ कैसे करें। हम उसका यूज़ अच्छा भी कर सकते हैं और उसका यूज़ बुरा भी कर सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स आपको एग्रीकल्चर में यूज़ में आते हैं। इसके बाद इम्प्रूव्ड सीड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनसे पैदावार अच्छी नहीं होती, तो ऐसे सीड से जो
लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जिनसे हमको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज अच्छी फसल होती है और हमको पैदावार अच्छी मिलती है, जिससे कि हमको आर्थिक लाभ भी होता है। तो इम्प्रूव्ड सीड्स बनाने में भी इसका केमिस्ट्री का यूज़ होता है। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशी, पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशी, फंगिसाइड्स यानी कवकनाशी। तो ये तीनों हैं कीटनाशी, पीड़कनाशी, कीट पीड़क और ये कवक। ये तीनों क्या करते हैं, फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन रोगों को हटाने के लिए या कोई लग गया उनकी वृद्धि को रोकने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और ये सारे के सारे लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड फील्ड, जो है इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है। जीडीपी इसी पर बेस्ड है हमारी, है ना। यहाँ तक कि किसी भी देश की जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसमें H2SO4 का यूज़ भी लिखा जाता है कि कितना परसेंट कितनी मात्रा में H2SO4 यूज़ किया गया, है ना। तो उस अनुपात में ये माना जाता है कि इतना इंडस्ट्री चल रही है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितनी भी इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज दैट हैव a variety of chemicals are used in there। तो बहुत सी यहाँ पर इंडस्ट्री हैं। आप देख सकते हैं इन सभी इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का यूज़ होता है और केमिकल साइंटिस्ट या केमिस्ट्री से अगर आपने PhD कर रखी है, आपने कोई अच्छी डिग्री ले रखी है, तो आप इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट खाली होती है, जो हमेशा केमिस्ट्री MSc के लिए रिज़र्व होती है। तो आप इन सभी प्रकार की इंडस्ट्री में आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, आप इनके एम्प्लॉय बन सकते हैं, है ना। तो कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे तो लॉट ऑफ हैं, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल्स यानी कपड़े का, लेदर, डाइज़ क्या होती हैं? कलर, है ना। जो विभिन्न कलर नहीं होते उनको हम डाइज़ कहते हैं। ग्लास, पेंट, सोप, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशे जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं ना। मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु निष्कर्षण, शुद्ध धातु बनाना, है ना। जो खदान से जो और आता है, अयस्क आता है, उससे प्योर मेटल निकालना। फोटोग्राफी, कास्टिक सोडा, एसिड्स, पॉलीमर, शुगर, पेट्रोलियम, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं which manufacturing variety of inorganic and organic chemicals including new materials contribute in a big way to the national economy। इन सभी इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है और इसी पर हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर केमिस्ट्री की सेंट्रल कंट्रीब्यूशन होता है, केंद्रीय भूमिका है इस। केमिस्ट्री के बिना आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो सेकेंड मेजर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। द थर्ड वन इज़ इन हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैरायटी ऑफ ड्रग्स जो बनाई जाती हैं लेबोरेटरी में, वो केमिस्ट्री की देन है ना। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल। यहाँ पर हम कुछ मेजर ड्रग्स के बारे में देखेंगे जो यूज़ में आती है। तो कैंसर थेरेपी के अंदर हम यूज़ करते हैं एक तो सिस्प्लाटिन और एक टैक्सोल। ये दो मेडिसिन ऐसी है जो कैंसर के लिए यूज़ में आती हैं। आप इसमें इनके दोनों के नेम लर्न कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन फॉर एड्स डिजीज़, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण ये बीमारी होती है। इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है मरीज की और धीरे धीरे सब बीमारियां उसको घेरने लगती है। तो उसकी रोकथाम के लिए और उसके इफ़ेक्ट को रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसका नाम है AZT। AZT शॉर्ट फॉर्म है, फुल नेम है इसका एजिडोथाइमिडीन, ठीक।
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोबायल्स यानी बैक्टीरियाज एंड वायरस को रोकने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सानिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल एंड सो मोर। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक है जो आप आगे 12th में भी पढ़ोगे, आपके कोर्स में है ये। नेक्स्ट है इन द स्टडी ऑफ वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय आयोडीन आइसोटोप। हम जानते हैं कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है जो गर्दन के बिल्कुल नीचे है पास में, तो उसमें सूजन कब आ जाती है? जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना। तो थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है इसको जानने के लिए हम आयोडीन आइसोटोप का यूज़ करते हैं। आइसोटोप आप समझते हो ना, आइसोटोप का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको समस्थानिक। हाँ दो। तो आइसोटोप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग हो, है ना, मास नंबर अलग अलग हो, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम सेकंड चैप्टर में समस्थानिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी केवल जानकारी रखिए ये कि आयोडीन आइसोटोप का यूज़ थायराइड ग्लैंड के वर्क के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है ना। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूज़ ऑफ कोबाल्ट 60, या अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, और जो अपने ये जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 भी क्या है? रेडियो एक्टिव होगा ये शायद। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है आपकी कैंसर की डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। देन टू प्योरीफाई वाटर बाय यूज़ ऑफ क्लोरीन, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर एंड जियोलाइट्स। ये चारों जो हैं, क्लोरीन है, ओजोन है, ब्लीचिंग पाउडर है और जियोलाइट्स है, इन चारों का उपयोग टू प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। आप लोग वाटर पार्क जाते होंगे, वाटर पार्क में जाते तो आप जिस पानी में नहाते आपने देखा होगा बिल्कुल क्लीन रहता है, क्योंकि वो क्लोरीन वाटर है, उसमें क्लोरीन मिलाई गई है, इसलिए उसको प्योर करने के लिए, उसमें बिल्कुल उसके अंदर गंदगी को हटाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। और क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा, नवजात क्लोरीन जो है वो क्या करती है? कलर उड़ा देती है ना, कलरलेस बना देती है हर चीज़ को। तो इसलिए वो पानी जो है बिल्कुल क्लीन दिखता है हमको। आप देखना बिल्कुल नीचे का पैंदा तक दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, और जो और भी बहुत सारी हैं, है ना। इसमें बहुत सारी, इसमें जितनी हम बात करेंगे उतनी कम होती जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन टू कंट्रोल पॉपुलेशन बाय यूज़ ऑफ एंटी फर्टिलाइजर्स किसको कहते हैं? जनसंख्या को कम करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी एजेंट या एंटी फर्टिलाइजर्स, है ना। जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं वो भी इसी में आती हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स की केमिकल स्ट्रक्चर अब हमको पता लग गई है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स बना सकते हैं लेबोरेटरी में, और यही काम हमारी केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री ने बहुत से ऐसे साइंटिस्ट तैयार किए जो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अगर आप हमारी डेली लाइफ को देखें तो सुबह से शाम तक हम सिवाय बिना केमिस्ट्री के, बिना केमिकल के कुछ कर नहीं रहे हैं। आप देखिए सुबह उठते टूथब्रश क्या है? पॉलीमर है, प्लास्टिक का बना हुआ है, वो केमिकल है। आप जो पेस्ट डाल रहे हो वो केमिकल है। फिर आप नहाने जाते हो तो सोप डिटर्जेंट, उसके बाद आप क्या लगाते हो? आप शैम्पू लगाते हो, कंडीशनर लगाते हो। ये सब क्या है? ये सब केमिकल्स से ही बने हैं। उसके बाद हम चाहे हम सनस्क्रीन लगाएं, क्रीम लगाएं, जो भी लगाएं, यहाँ तक कि रात को सोते समय जो मॉस्किटो कॉइल होती है वो भी आपका कोई किसी न किसी प्रकार का केमिकल कंपाउंड ही है जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो ऑल वेराइटी ऑफ नीडी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर में लगने वाली सिलिकॉन चिप जो होती है ना, जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, वो भी पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, यानी ये भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड ही है। तो आपने देखा कि डेली लाइफ में भी आप विचार करें, आप कहीं पर भी देखें, कंप्यूटर हमने देखा, कंप्यूटर की बॉडी बाहर कौन से प्लास्टिक से बनी है? ये भी केमिकल है, पॉलीमर है ना। तो आप कहीं भी जाइए, आपके स्विच क्या है? बेकेलेट प्लास्टिक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, रेशो पर डिपेंड करता है।
और कैसे बनाते हैं हार्ड प्लास्टिक, है ना, सॉफ्ट प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, फाइबर्स, है ना। आप जो रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं जो नॉन स्टिक बर्तन, वो टेफ्लॉन से बना होता है, वो भी केमिकल कंपाउंड है, जिसमें खाना चिपकता नहीं है। आजकल मिलते हैं ना ब्लैक कलर के जो, वो टेफ्लॉन से बने होते हैं। तो देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। चलते हैं इन वार फील्ड। युद्ध में केमिस्ट्री का उपयोग किस में किया जाता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेराइटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइक डायनामाइट, TNT। द फुल फॉर्म ऑफ TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। I will give you the formula of TNT in next chapters. Nitroglycerin and so many types of poisonous gases like mustard gas, tear gas, chloropicrine and anthrax gas. बहुत सारी poisonous gases यूज़ की जाती हैं। मस्टर्ड गैस, उसको मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरसों के समान, तेल के समान गंध आती है और सरसों को कहते हैं मस्टर्ड, इसलिए इसका नाम है मस्टर्ड गैस। फिर आता है अपना टीयर गैस, जो आपने देखे होंगे आजकल बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, विरोध करते हैं। कश्मीर में जब किसी आतंकवादी को मारते हैं तो कश्मीरी जनता उन आतंकवादियों के, टेररिस्ट के सपोर्ट में आंदोलन करने लगती है, तोड़फोड़ करने लगती है। तब ऐसी उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस जो यूज़ की जाती है, वो टीयर गैस भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, इसको ब्रोमोएसीटोन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रिन भी क्या है, इसी प्रकार से वार में काम आने वाली युद्ध गैस है, और एंथ्रेक्स भी है, ठीक है। इस प्रकार से अदर जो एक्सप्लोजिव्स है जैसे एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कोबाल्ट बॉम्ब, ये सारे भी क्या हैं, ये सारे भी युद्ध में आने वाली, काम में आने वाली सामग्रियां हैं। और आने वाले समय में केमिकल वार होने की ज़्यादा संभावना है। इस प्रकार के वायरस तैयार किए जाएंगे, इस प्रकार के बम तैयार किए जाएंगे कि कहीं पर यूज़ करने पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ आपको हो जाएगी, जिसका सॉल्यूशन उस कंट्री के पास नहीं रहेगा, तो वहाँ पर महामारी फैल सकती है, उसको लॉट ऑफ बहुत नुकसान पहुँच सकता है उसको। तो आने वाला समय और बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि नाउ वी नो वेराइटी ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स विच कैन किल अस, जो हमको मार सकते हैं। ऐसे हमको हैज़ार्डस केमिकल, बहुत ख़तरनाक केमिकल्स हमको जानकारी है आज की तारीख में, है ना। तो युद्ध के क्षेत्र में केमिस्ट्री का उपयोग आप समझ गए होंगे। थ्री इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल फील्ड टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? हमारे शरीर में होने वाली या किसी जीव जंतु के शरीर में होने वाली, किसी पेड़ पौधे में होने वाली केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कहलाती है बायोकेमिकल रिएक्शंस। टू नो अबाउट रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज़ या जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है, जैसे फैट है, ऑयल है, विटामिन्स हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, है ना। तो ये जितने भी हमारे बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, उनकी लोकेशन क्या है, वो किस ऑर्डर के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब जानकारी हमको केमिस्ट्री के द्वारा होती है। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, with the help of radioactive phosphorus, it is known that the substance ingested by the leaves move down and the soaked mineral salts by roots move upwards. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से पता चला कि लीव्स यानी पत्तियों के द्वारा जो ग्रहण किए गए पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो नीचे की ओर जाते हैं, और जड़ों द्वारा, रूट्स के द्वारा जो सॉल्ट सोखे जाते हैं, सॉक्ट किए जाते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन ये पता किससे चला? ये केमिकल एलिमेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से पता लगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट है उसका यूज़ किया जाता है ट्रेस करने में, कहीं पर भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लीकेज कहीं हो जाए उसका पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का यूज़ एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने में कैसे किया जाता है। टू प्योरीफाई एनवायरनमेंट, टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट डैमेज by industrial waste, vehicle pollution, water pollution. Every type of pollution can harm the environment around us. हमारे चारों ओर के जो environment को
डैमेज कर सकता है वो है हर प्रकार का पॉल्यूशन, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या व्हीकल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, है ना। ये सभी प्रकार का पॉल्यूशन हमको बर्बाद कर रहा है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया कि ऑड इवन हमको व्यवस्था करनी पड़ी, अरेंजमेंट करना पड़ा, है ना। एक दिन ऑड नंबर वाले व्हीकल चलेंगे, दूसरे दिन इवन। ये सिचुएशन क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि हमको तो साइंस ने बता दिया कि आपके लिए हैज़ार्डस है, आपके लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन हम क्या हैं, हम लापरवाह लोग हैं। जब तक हम पर बीतती नहीं है हम किसी को स्टेप नहीं उठाते। तो हम दूरदर्शी नहीं हैं, है ना। तो हमने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए तो आज हमको भुगतना पड़ रहा है। एंड हम उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं आज की तारीख में। इसी प्रकार से ओजोन डिप्लीशन जो हुआ है ना, टू अंडरस्टैंड एंड solve the worldwide problems such as global warming, water and air pollution, acid rain। जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेज हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, है ना, वाटर वेपर। ये ऐसी गैसेज हैं जो क्या करती हैं, एनवायरनमेंट की जो गर्मी है, रेडिएशन से उनको बाहर नहीं जाने देती। तो एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है और इस गर्म होने के कारण जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है अभी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत से देशों की तटरेखाएं डूबने लगी है। ये मेन समस्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, एसिड रेन। आपने देखा होगा एसिड रेन होती है जो एयर पोल्यूशन के कारण जो गैसेस निकलती है हमारे व्हीकल से, चाहे कार्बन के ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर के ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो। ये सारे ऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये उसके साथ घुल करके एसिड बना लेते हैं। H2SO4 बन जाता है, उधर HNO3 बन जाता है, इधर HCl बन जाता है। ये सारे एसिड क्या करते हैं, ये एसिड बारिश के साथ इस प्रकार जो बारिश होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन क्या करती है, ये एसिड रेन चूने के पत्थर को, जैसे ताजमहल है, कैल्शियम कार्बोनेट से, चूने का पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे केमिकल रिएक्शन करके उसको ख़राब कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को घटा देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए देखने लायक हैं। पौधों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ पौधों को एसिड रेन ख़त्म कर देती है। तो चूँकि वो एसिड ही बन गई तो सबके लिए ही वो नुकसानदायक है। तो ऐसी जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में केमिस्ट्री का उपयोग है, क्योंकि केमिस्ट्री उसकी तह तक जाती है कि हाँ भाई ये क्यों होती है, कैसे होती है, अगर इस कारण को रोक दिया जाए तो हाँ हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हर प्रकार की साइंस हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन केमिस्ट्री विशेष रूप से इसलिए उपयोगी क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बचाने में सेंट्रल पार्ट अदा करती है। एक और एग्जांपल अगर हम लें, टू गिव सेफर अल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता था रेफ्रिजरेंट के रूप में, रेफ्रिजरेटर में और हर प्रशीतक में, ठंडा करने वाली वस्तु में इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे ही हमको साइंस ने हमको बताया कि ये जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्ट्राटोस्फेयर में जाकर के, समताप मंडल में जाकर के वहाँ पर जो और ओजोन लेयर है उसको ये क्या कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। और इसकी बहुत कम मात्रा ही बहुत ज़्यादा परत को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। तो हमको ये जैसे ही पता चला हमने CFC का यूज़ बंद कर दिया और CFC का अल्टरनेटिव्स हम लाए, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आप कि हम एनवायरनमेंट को बचाने में साइंस ने कितना बड़ा योगदान किया, केमिस्ट्री ने कितना बड़ा योगदान दिया, है ना। नहीं तो हमको पता ही नहीं लगता, हम यूज़ करते जाते और हमारी स्थिति और बिगड़ती जाती। ओजोन लेयर के ख़त्म होने से रेडिएशन सीधी हमारे पृथ्वी पर आ रही है और उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो हमारी स्किन को जला देती है, हमको स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो एनवायरनमेंट को बचाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आगे भी रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो कोई वाली बात, इस अभी जैसे आए दिन मीटिंग होती है कि हाँ कार्बन उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, है ना। तो कार्बन उत्सर्जन मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएंगे वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। ऊपर से वो एसिड रेन जैसी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। तो
टू प्योरीफाई एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने के लिए केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, आगे भी देती रहेगी। जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का पॉइंट है वो है टू वैनिश द मिसकंसेप्शंस। पुराने समय से लेकर अभी तक बहुत से सुपरस्टिशन हमारे समाज के अंदर फैले हुए हैं, अंधविश्वास हैं। तो उन अंधविश्वास और झूठी अवधारणाओं का अंत करने में केमिस्ट्री और साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। टू एलिमिनेट द सुपरस्टिशंस एज prevalent in society and in developing new scientific approach regarding the origin of earth, usefulness of plants and life on other planets। तो ऐसी बहुत सी हमारे पास हमारे मिसकंसेप्शंस थे जिनको साइंस और केमिस्ट्री ने दूर किया है। जैसे बाइबल में लिखा था कि अर्थ फ्लैट है, बाद में पता लगा कि इसका स्फेरिकल शेप है। तो इस मिसकंसेप्शन को हटाने में साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सी, क्योंकि पहले पूरी दुनिया रिलीजन पर चलती थी और रिलीजन जो था वो रिलीजियस किसी न किसी बुक पर चलता था। तो रिलीजियस बुक के अंदर जो भी तथ्य दिए थे, जो भी पॉइंट दिए थे, उनको हमारी जो जनता है या जो भी लोग हैं वो बिल्कुल आँख मूंद कर उनको सही मानते थे। लेकिन उनमें से बहुत से कंसेप्ट गलत निकले जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हुए, उनको हम कहते हैं अंधविश्वास। तो इस प्रकार के अंधविश्वास को दूर करने में, न्यू केमिकल्स बनाने में, नए पदार्थ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और साइंटिफिक अप्रोच, हर चीज़ को साइंटिफिक अप्रोच से देखने का नज़रिया भी केमिस्ट्री हमारा बनाती है ना। चाहे वो ओरिजिन ऑफ अर्थ हो कि हाँ ये अर्थ कैसे बनी, या प्लांट एंड एनिमल्स का के यूज़ में क्या क्या नया हो सकता है, और दूसरा है कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, और क्या हो सकता है वहाँ पर लाइफ, है ना। अदर प्लैनेट्स पर लाइफ डेवलप हो सकती है क्या या नहीं हो सकती, इस बारे में हमारी साइंटिफिक अप्रोच बनती है। केमिस्ट्री का मूल काम, कोई भी साइंस की कोई भी ब्रांच है, उसका मूल काम क्या है, मेन वर्क क्या है। साइंस का बच्चे को हम इंटेलिजेंट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी धीरे धीरे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते उसकी अप्रोच ही साइंटिफिक हो जाती है। वो उसका हर काम व्यवस्थित होगा। वो ऐसा नहीं कि कहीं भी वो बोलेगा तो भी तोल कर बोलेगा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल, कहीं गलत तो नहीं है ये। क्योंकि ये सब्जेक्ट हमको सिखाती है सही को सही और गलत को गलत कहना। ये हमारी सब्जेक्ट की विशेषता है। साइंस सब्जेक्ट ही ऐसी है कि ये हमको सिखाती है कि सही सही है और गलत गलत रहेगा हमेशा। तो हम कंफ्यूज बहुत कम होते हैं। साइंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे पास बिल्कुल जवाब रहेगा साइंस के बच्चे के पास कि या तो ये सही है या ये बात गलत है। तो भ्रांत अवधारणाओं का यानी गलत धारणाओं का अंत करने में। और अगला है आपका इन सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। ये अंतिम पॉइंट है। आजकल नई नई चीज़ें बन रही हैं, है ना, विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials with specific magnetic, electromagnetic and optical properties। नए नए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की नए नए सब्सटेंस बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? केमिस्ट्री के द्वारा। एंड दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स। सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स का निर्माण किया जा रहा है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। तो फ्यूचर जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए हम नए नए सब्सटेंस बनाते जा रहे हैं। और नए सब्सटेंस बनाने में भी, नए नए प्रकार की उपयोगी सामग्री बनाने में भी केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण सेंट्रल रोल है। तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के कुछ मुख्य बिंदु बताएं। ये मोटे मोटे रूप में है। हरि कथा अनंता, है ना। केमिस्ट्री के जितने गुण गाएं उतने कम हैं। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे आप इसको जानोगे। फर्स्ट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर का भी हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है अभी। आप जैसे जैसे
इसे पढ़ते जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप अंदर से महसूस करेंगे कि ये क्या है ना। तो आज के वीडियो में हमने जो तीन मेजर टॉपिक्स हमने जो लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दो बुक बनानी है, दो नोटबुक बनानी है आपको। एक में आप नोट्स उतारिए, दूसरे में आप क्वेश्चंस उतारिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, बताया था आपको, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ एनी मैटर, है ना। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। विच इंडियन महर्षि गेव प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी? महर्षि कणाद। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता रिलेटेड टू विच फील्ड? चरक संहिता इज रिलेटेड टू मेडिसिनल साइंस और फार्मेकोलॉजिकल साइंस, एंड सुश्रुत संहिता इज रिलेटेड टू सर्जिकल, है ना, सर्जिकल साइंस। सिलिकॉन चिप यूज्ड इन कंप्यूटर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? इट इज मेड अप ऑफ polycarbonate, which is also a chemical compound. Which chemical substances are used for purification of water? There are so many examples. Chlorine, है ना, chlorine, bleaching powder, zeolite, ozone. Which medicine is used for treatment of cancer disease? Cisplatin and Taxol, and also cobalt 60. Who is known as father of chemistry in modern India? Prafulla Chandra Roy. And name 2 poisonous gases which are used in war. And I gave 4 gases named as tear gas, mustard gas, chloropicrine and anthrax. These 4 gases are used in war. तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स आप वीडियो बॉक्स में डाल दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप बिल्कुल आपके सजेशंस खुल के रहिए, आप एज अ फ्रेंड बिहेव कीजिए। देयर इज़ नो स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट पहले रहते थे, एक ज़माना था जब गुरु और शिष्य रहते थे। अब एज अ फ्रेंड आप मुझे सिखाइए और आप मुझे सजेशंस दीजिए कि और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का बैड इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है, क्लासेस होने की संभावना कम है। इसलिए अभी से अपनी हैबिट डालिए कि हम केवल वीडियोस से भी पढ़ सकें। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा। धन्यवाद।